there is early evidence of an increased capacity of banks to lend at reduced interest rates and a huge shift towards digitization amongst all sections of society. We firmly believe that the demonetization and the GST, which were built on the third transformational achievement of our government, namely the JAM vision, will have an epoch-making impact on the economy and the lives of our people. Madam, we are at an important point in the path of our growth and development. इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप, डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं आइए आप. The pace of remonetization has picked up and will soon reach comfortable levels. The effects of demonetization are not expected to spill over to the next year. Thus, IMF, even while revising India's GDP forecast 2016 downwards, has projected 7% in 2017 and 18 respectively. The World Bank, however, is more optimistic and has projected a GDP of 7% in 2016-17, 7.6% in 17-18, and 7.8% in 18-19. This pickup in our economy is premised upon the policy and determination to continue with economic reforms, increase in public investment in infrastructure and development projects, and export growth in the context of an expected rebound in the world economy. The surplus liquidity in the banking system created by demonetization will lower the borrowing costs and increase the access to credit. This will boost economic activity with multiplier effects. The announcements made by the Honorable Prime Minister on the 31st of December 2016 addresses many of the key concerns of our economy at this juncture, such as housing for the poor, relief to the farmers, credit support to the MSMEs, encouragement to the digital transactions, assistance to pregnant women and senior citizens, and priority to Dalits, tribals, backwards, and women under the Mudra Yojana. My overall approach while preparing this budget has been to spend more in rural areas, infrastructure, and poverty alleviation, and yet maintain the best standards of fiscal prudence. I have kept in mind the need to continue with economic reforms, promote higher investments, and accelerate growth. The last 1 year was a witness to other major reforms, namely the enactment of the Insolvency and the Bankruptcy Code, amendment to the RBI Act for inflation targetment of the Aadhaar Bill for disbursement of financial subsidies and benefits, significant reform in the FDI policy, the job-creating package for the textile sector, and several other measures. We will continue to process the process of economic reforms for the benefit of the poor and the underprivileged. Madam Speaker, the budget 2017-18 contains 3 major reforms. First, the presentation of the budget has been advanced to the 1st of February to enable the Parliament to avoid a vote on account and pass a single appropriation bill for 17-18 before the close of the current financial year. This would enable ministries and departments to operationalize all schemes, projects, including new schemes, right from the commencement of the next financial year. They would be able to utilize the available working season before the onset of the monsoons. Second, the merger of the railway budget with the general budget is a historic step. We have discontinued the colonial practice prevalent since 1924. This decision brings railways to the center stage of the government's fiscal policy and would facilitate multimodal transport planning between the railways, highways, and inland waterways. The functional autonomy of the railways will, however, continue. Third, we have done away with the plan and the non-plan classification of expenditure. This will give us a holistic view of allocation for sectors and ministries. This would facilitate optimal allocation of resources. Madam Speaker, we are aware that we need to do more for our people
Continuing with the task of fulfilling the people's expectations, our agenda for the next year is transform, energize, and clean India, that is Tech India. This agenda of Tech India seeks to transform the quality of governance and the quality of life of our people, energize various sections of society, especially the youth and the vulnerable, and enable them to unleash their true potential, clean the country from the evils of corruption, black money, and the non-transparent political funding. I propose to present my budget proposals under 10 distinct themes to foster this broad agenda. The themes are: 1. Farmers for whom we have committed to double their incomes in 5 years. 2. Rural population, providing employment and basic infrastructure. 3. Youth, energizing them through education, skills, and jobs. 4. Poor and the underprivileged, strengthening the system of social security, healthcare, and affordable housing. 5. Infrastructure for efficiency, productivity, and quality of life. 6. Financial sector, growth and stability through stronger institutions. 7. Digital economy for speedy accountability and transparency. 8. Public service, effective governance and efficiency of service delivery through people's participation. 9. Prudent fiscal management to ensure optimal deployment of resources and preserve financial stability. And 10. Tax administration, honoring the honest. Farmers. The Indian farmer has once again shown his commitment to the resilience in the current year. शक्ति का प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान 4.1% की वृद्धि होने की आशा है। पिछले वर्ष के बजट में भाषण में मैंने 5 वर्षों में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसानों को आय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने इस संबंध में अनेक उपायों की भी घोषणा की थी। हमें और उपाय करने होंगे तथा किसानों को उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने और फसल प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होगा। अच्छी फसल के लिए किसानों को समय से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य 10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। हम अल्प सेवित क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। लगभग 40% छोटे एवं सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ऋण प्राप्त करते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां ऋण वितरण के लिए अग्रसिरे के रूप में कार्य करती हैं। हम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी 63,000 क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण तथा समेकन के लिए नाबार्ड को सहायता उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य 1900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 3 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रतिभागिता की जाएगी। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा। बुआई करते समय किसानों के मन में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा का भाव होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना जो इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। इस योजना का विस्तार क्षेत्र 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30% से बढ़ाकर 17-18 में 40% और 18-19 में 50% हो जाएगा। बजट अनुमान 16-17 में इस योजना के लिए 5,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसे बकाया दावे का निपटान करने के लिए 16-17 के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 13,240 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 17-18 के लिए मैंने इस मद के लिए 9,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि 2015 के खरीफ मौसम में
59,000 करोड़ रुपए थी, जो दोगुने से अधिक होकर 16 के खरीफ मौसम में 1,41,625 करोड़ हो गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की गति में तेजी आ रही है। किसानों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि मिट्टी के नमूनों की शीघ्र जांच की जाए तथा मृदा से उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर के बारे में उनके जानकारी हो। इसलिए सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाओं को स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों का 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगी। योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1000 लघु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नाबार्ड में एक दीर्घकालिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्थायी निधि में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाएगी। प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया है। इस कोष की आरंभिक निधि 5,000 करोड़ होगी। फसल कटाई के बाद के चरण के लिए हम किसानों को बाजार में अपनी उपज की बेहतर कीमतें प्राप्त करने के समर्थ बनाने के लिए कदम उठाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम दायरे का मौजूदा 250 बाजारों में 585 APMC तक विस्तार किया जाएगा। स्वच्छता, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक ई नाम बाजार को 75 लाख की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल सकेगा। बाजार सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा और राज्यों में APMC से खराब होने वाली वस्तुओं को विमुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर कीमतों पर बेचने का अवसर मिलेगा। हमारा उन किसानों को एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है जो बेहतर मूल्य प्राप्त करने और फसल कटाई के पश्चात हानियों को कम करने के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के साथ फल और सब्जियां उगाते हैं। इसलिए संविदा खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। डेयरी किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का महत्वपूर्ण जरिया है। दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता से किसान मूल्य वृद्धि के जरिए लाभान्वित होंगे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की एक बड़ी संख्या पुरानी और अव्यवहारिक हो गई है। 3 वर्षों में 8,000 करोड़ की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। आरंभ में इस निधि की शुरुआत 2,000 करोड़ की संचित निधि से की जाएगी। ग्रामीण आबादी। अब मैं उस ग्रामीण क्षेत्र पर आता हूं जो महात्मा गांधी जी के हृदय के अत्यधिक करीब था। यदि हम केंद्रीय बजट, राज्य के बजटों, स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक संबद्धता आदि से ग्रामीण गरीबों के उद्देश्य संचालित सभी कार्यक्रमों को जोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त होगी। जवाबदेही, परिणामों और सामंजस्य में सुधार करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने के साथ हम 2019 अर्थात महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने, 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने के लिए अंत्योदय मिशन शुरू करेंगे। हम वार्षिक वृद्धियों के साथ मौजूदा संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से उपयोग करेंगे। यह अभियान प्रत्येक वंचित परिवार के लिए स्थायी रूप से आजीविका हेतु एक सूक्ष्म योजना पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्य करेगा। आधार रेखा से प्रगति की निगरानी करने के लिए गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए एक मिलीजुली सूची तैयार की जाएगी। हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगना करने के हमारे संकल्प के समर्थन हेतु मनरेगा को उन पर अभिमुख करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करते हुए मनरेगा को खेती की उत्पादकता और आमदनी में सुधार लाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना चाहिए। मनरेगा निधियों से पिछले बजट में घोषित खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढों का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है। वास्तव में खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों के लक्ष्य के मुकाबले मार्च 2017 तक लगभग 10 लाख खेती से जुड़े तालाबों का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2017-18 के दौरान खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। इस एकल उपाय से ग्राम पंचायतों को जल की कमी से अत्यधिक
राहत मिल जाएगी। from less than 45% मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी विगत में 48% से कम थी, जो बढ़कर 55% तक हो जाएगी। माननीय सदस्यगण, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ के बजट प्रावधान को वर्ष 17-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ कर दिया गया है। यह मनरेगा के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। 10,000 करोड़। पहले 40,000 अलॉट होता था और 29,000 खर्च होता था। अब 38,500 पिछली बार अलॉट हुआ, 47,000 खर्च हुआ और आने वाले साल में 48,000 होगा। ये परंपरा नहीं है। You know better. This is not the method. This is not the way.